لیے چلیں گے۔ وزیراعظم شہباز شریف قدرتی آفات سے نمٹنے کے لیے تعاون کی مفاہمتی یادداشت پر دستخط کی تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ A very fruitful discussion this morning, and we have just signed memorandum of understanding on disaster management, which would promote a cooperation between the two countries, how to use modern technique and technologies to disasters in future jointly. And as I discussed with you, along with my colleagues, that we would be looking forward to having cooperation from Switzerland in terms of getting warning system, advanced warning system, very advanced in technology, and other facets which really would secure Pakistan as much as possible from natural disasters out of climate change, where we have no contribution at all. We are not at fault at all. Secondly, I think we had again very good discussion on how to promote tourism between the two countries. We have beautiful mountains. One is in front of us. It's pristine beauty. We certainly lack in infrastructure and other facets which would promote tourism in Pakistan in a big way. I look forward to working with you and your government closely on this count as well. Also in the field of education and other areas. Thank you very much for your visit. Thank you, members of the delegation. You took time to visit Pakistan after a long while. And I'm very grateful that you mentioned about how important it is to maintain peace in this part of the world. And I was greatly encouraged by your statement that Switzerland would play friendly role and a role of as a catalyst to promote peaceful discussions. I would like to encourage you that please play a very proactive role, because Pakistan would like to live in peace in this region. Pakistan would like to promote prosperity, progress. Pakistan would like to invest in its population, alleviating poverty, unemployment, and promoting industry, agriculture, empowering our youth, our female population, schools, universities, medical centers, research centers. It's an agrarian economy, promote agriculture, IT. We have a youth pulse which can be so profitable and so useful, not only for the well-being of Pakistan, but interacting globally. All these areas are very important for us. But the other side should also have honest introspection. It takes two to tango. So I think we cannot afford tension in this area. We cannot afford to waste our resources on fighting wars as they have not been of any help in the past. So I think we must absolutely, we are convinced that we should commit our resources in investing in the well-being of Pakistan. And of course, the leadership on the other side should also feel the same way. But to have lasting peace in this part of the world, we must understand clearly, without any kind of confusion, that for that we must resolve our issues, including Kashmir. Without that, we won't have peace in this part of the world. Thank you very much again. Thank you for your visit. And as a sehr schön meinen, wunderbar. Willkommen Sie. گفتگو آپ ملاحظہ کر رہے تھے، وزیراعظم شہباز شریف کا تقریب سے خطاب، دونوں ممالک کے درمیان سیاحت کو فروغ دیں گے، یہ کہنا تھا وزیراعظم شہباز شریف کا۔ سوئٹزرلینڈ کے وزیر خارجہ کے دورے کا خیر مقدم کرتے ہیں۔
स्विस वज़ीर ख़ारजा से मुफीद और तामीरी बातचीत हुई है। कुदरती आफात से निमटने के लिए ताउन की मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत की ये तकरीब है, जिसमें शहबाज शरीफ गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा जदीद टेक्नोलॉजी और मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मजीद बढ़ाएंगे। स्विस वज़ीर ख़ारजा से मुफीद और तामीरी बातचीत हुई। माजी की तरह वसाइल को ज़ाया नहीं करना चाहते, ये कहना था वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का। वज़ीर आज़म ने कहा दोनों ममालिक के दरमियान सियाहत को फ़रोग़ देंगे। स्विट्ज़रलैंड के वज़ीर ख़ारजा के दौरे का खैर मकदम करते हैं। स्विस वज़ीर ख़ारजा से मुफीद और तामीरी बातचीत हुई है। वज़ीर आज़म ने कहा जदीद टेक्नोलॉजी और मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मजीद बढ़ाएंगे। स्विस वज़ीर ख़ारजा से मुफीद और तामीरी बातचीत हुई। माजी की तरह वसाइल को ज़ाया नहीं करना चाहते, ये कहना था वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का। आप ये मनाज़िर देख रहे हैं, कुदरती आफात से निमटने की ताउन की मफाहमती याददाश्त की ये तकरीब है, जिस पे दस्तखत किए गए हैं। इस पे आप देख रहे हैं कि शरीर रहमान वज़ीर इत्तलात भी मौजूद हैं, मरियम औरंगज़ेब, और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गुफ्तगू की यहाँ पे, और अपनी गुफ्तगू में उन्होंने यही कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान सियाहत को फ़रोग़ देंगे। स्विट्ज़रलैंड के वज़ीर ख़ारजा के दौरे का खैर मकदम करते हैं। वज़ीर आज़म ने अपनी गुफ्तगू में कहा कि स्विस वज़ीर ख़ारजा से मुफीद और तामीरी बातचीत हुई है। वज़ीर आज़म ने कहा जदीद टेक्नोलॉजी और मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मजीद बढ़ाएंगे। उन्होंने कहा कि माजी की तरह वसाइल को ज़ाया नहीं करना चाहते। इस मौके पर आप देख रहे हैं शरीर रहमान, वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब भी तकरीब में मौजूद हैं, और वज़ीर आज़म इस वक्त महव गुफ्तगू हैं स्विट्ज़रलैंड के वज़ीर ख़ारजा के साथ। कुदरती आफात से निमटने के लिए ताउन की मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत की तकरीब है, और यहाँ पर गुफ्तगू में वज़ीर आज़म ने कहा दोनों ममालिक के दरमियान सियाहत को फ़रोग़ देंगे। स्विट्ज़रलैंड के वज़ीर ख़ारजा के दौरे का खैर मकदम करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा स्विस वज़ीर ख़ारजा से मुफीद और तामीरी बातचीत हुई है। वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि जदीद टेक्नोलॉजी और मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मजीद बढ़ाएंगे। स्विस वज़ीर ख़ारजा से मुफीद और तामीरी बातचीत हुई। माजी की तरह वसाइल को ज़ाया नहीं करना चाहते। वज़ीर आज़म ने कहा खत्ते में देरपा अमन के लिए मसला कश्मीर का हल ज़रूरी है। वज़ीर आज़म ने अपनी गुफ्तगू में मसला कश्मीर को उजागर किया, और उन्होंने कहा कि खत्ते में देरपा अमन के लिए मसला कश्मीर का हल ज़रूरी है। कुदरती आफात से निमटने के लिए ताउन की मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत की तकरीब, जिसमें वज़ीर आज़म ने कहा कि खत्ते में देरपा अमन के लिए मसला कश्मीर का हल ज़रूरी है। पाकिस्तान और स्विट्ज़रलैंड के दरमियान कुदरती आफात से निमटने के लिए ताउन की मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत की तकरीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी तकरीब में शरीक थे। उन्होंने कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान सियाहत को फ़रोग़ देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भारत में मुनक्किद होने वाले क्रिकेट वर्ल्ड कप में कौमी टीम की शिरकत से मुतालिक आला सतह की कमेटी कायम कर दी। कमेटी के सरबराह वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो होंगे। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह, आज़म नज़ीर ताड़र, एहसान मज़ारी, मरियम औरंगज़ेब, असद महमूद, अमीनुल हक, कमर ज़मान कायरा और तारिक फातमी भी कमेटी में शामिल। कौमी सलामती के इदारों के सरबराहान और सेक्रेटरी ख़ारजा भी कमेटी में शामिल हैं। ज़राए के मुताबिक कमेटी भारत में वर्ल्ड कप से मुतालिक तमाम उमूर पर सिफारिशात मुरतब करेगी। हतमी सिफारिशात मंजूरी के लिए वज़ीर आज़म को भिजवाई जाएंगी। पीसीबी ने कौमी टीम की वर्ल्ड कप में शिरकत हुकूमती इजाज़त से मशरूत कर रखी है। क्रिकेट वर्ल्ड कप 5 अक्टूबर से भारत में शुरू होगा। पाक भारत टाकरा 15 अक्टूबर को अहमदाबाद में होगा। अफसोसनाक खबर आपको देंगे सरगोदा से, जहां पर मुसाफिर वैन का सिलेंडर फट गया। हादसे में 7 अफराद झुलसकर जाँ बहक और 7 जख्मी हो गए। भलवाल कोट मोमिन रोड पर मुसाफिर वैन में गैस सिलेंडर फटने से गाड़ी में आग भड़क उठी, जिसके नतीजे में 7 मुसाफिर मौके पर ही जान से गए, जबकि 7 जख्मी हुए, जिन्हें तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जख्मी होने वालों में नजीरा बीबी, नजमा, सवेरा, आसफा, अरहम, फेरोज और अली शामिल हैं। जाँ बहक होने वालों की शनाख्त का अमल जारी है। मुल्क के बेशतर हिस्सों में बारिश। लाहौर, कसूर और सियालकोट समेत पंजाब के कई इलाके मुसलसल बारिश की लपेट में। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। रावलाकोट में तेज बारिश से नदी नालों में तुगयानी आ गई। महकमा मौसमियात ने मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी। मानसून सीजन में बारिश का मुसलसल स्पेल। लाहौर में आज भी कहीं तेज कहीं हल्की बरसात। बारिश के बाद मुतादिद फीडर्स ट्रिप कर गए, कई इलाके बिजली से महरूम हो गए।
डस्का में भी शहरियों की जिंदगी अजीरन, बारिश के बाद गलियां और सड़कें डूबी हुई हैं। चूनिया में शदीद बारिश ने आवाम के लिए मुश्किलात खड़ी कर दी। सड़कें, गलियां और महल्ले नदी नालों का मंजर पेश करने लगे। आजाद कश्मीर भी मॉनसून बारिशों की लपेट में है। रावलाकोट में मूसलाधार बारिश से नदी नालों में तुग़यानी आ गई। बलूचिस्तान के कई शहरों में मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाके ज़ेरे-आब आ गए। बिजली का निजाम दरहम बरहम हो गया। जाफराबाद, डेरा अल-यार, झल मक्सी, गंदावा, बोलान और दीगर शहरों में तेज बारिश से गलियां और सड़कें पानी में डूब गयीं। कई इलाकों का जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। महकमे मौसमियात ने आज भी मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मजीद बारिश की पेशगोई की है। लाहौर में आज भी कहीं तेज और कहीं हल्की बारिश वक्फे वक्फे से जारी है। नशेबी इलाकों में पानी जमा है और ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है। हमारे नुमाइंदे अलमास खान इस बारे में बताएंगे। जी, गुज़िश्ता रात से ही वक्फे वक्फे से लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं तेज़ और कहीं हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। इस वक्त हम जोहर टाउन में मौजूद हैं और ये शौक चौक में जो नशेबी इलाका है, यहाँ से तकरीबन 2 किलोमीटर लंबी ये जगह है जहाँ पे ट्रैफिक की रवानी में खासा खलल पड़ा हुआ है। सिर्फ इस पानी खड़े होने के बायस वासा के जो अहलकार हैं वो यकीनन यहाँ पे काम कर रहे हैं, लेकिन इस जगह पे खासी बारिश हुई है और उसके बायस यहाँ पे तकरीबन 1.5 फीट पानी जमा हो गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान भी लाहौर और लाहौर के मुख्तलिफ इलाके हैं, कहीं तेज़ और कहीं हल्की बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। कई रोज की मुसलसल बारिशों से जनूबी वजीरिस्तान के पहाड़ी नदी नालों और गोमलजाम डैम के मेन नाले में तुग़यानी। डेरा इस्माइल खान और टांग के मुतादिद इलाकों का शहर से जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। जनूबी वजीरिस्तान से आने वाले सैलाबी रेलों से डेरा इस्माइल खान और टांग के मुतादिद इलाकों का राब्ता मुनक़ता हो गया। गोमलजाम डैम में मेन नाले में इस वक्त 14,000 क्यूसेक का रेला गुजर रहा है, जिसके बायस रज़गा समेत मुतादिद इलाकों का राब्ता मुनक़ता हो गया है और गरा मोहब्बत का पुल टूटने से शहरी मैसूर होकर रह गए हैं। गिलगित बल्तिस्तान के बलाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी है। जुलाई के महीने में पहली दफा रिकॉर्ड बर्फबारी हुई है। दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से नीचे गिर गया। बाबूसर में वक्फे वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी है। खतरात के पेश नजर बाबूसर शाहराह को ट्रैफिक के आमदरफ के लिए रोक दिया गया। लैंड स्लाइडिंग से शारिया कराक्रम मुतादिद मकामात पर बंद है। सैकड़ों सयाह मुसाफिर फंस गए। जिला इंतजामिया के मुताबिक बहाली का काम जारी है। शारिया चलात से गिलगित सेक्शन को एक तरफा ट्रैफिक के लिए बहाल कर दिया गया है। थोर मीनार के मुकाम पर भी लैंड स्लाइडिंग से बंद शाहराह बहाल कर दी गई है। निगरां वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस शरपसंदों के खिलाफ कानूनी कार्रवाइयों में पेशरफ्त का जायजा लिया गया। इजलास में हाई प्रोफाइल केसेस में रिहा होने वालों की जमानतें मंसूख कराने के लिए अपीलें दायर करने का फैसला किया गया। निगरां वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने जलाओ घिराव तोड़ फोड़ में मुलव्विस 171 शरपसंदों की शनाख्त न होने का सख्त नोटिस लेते हुए शरपसंदों की शनाख्त का अमल जल्द अज जल्द मुकम्मल करने का हुक्म दिया। मोहसिन नकवी ने कहा, मफरूर शरपसंदों का ताक़ुब जारी रखा जाए। 9 मई को फौजी तनसीबात पर हमला करके मुल्क की असास पर हमला किया गया। हमले, जलाओ घेराव, लूटमार और तोड़फोड़ बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत की गई। शरपसंदों ने जो घिनौना खेल खेला वो नाकाबिले माफ़ी जुर्म है। केसेस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। 9 मई का एक और अहम मतलूब शरपसंद गिरफ्तार। शरपसंद मोहम्मद अरसलान फौजी तनसीबात के जलाओ घिराव और तोड़फोड़ में सरगर्म रहा। शरपसंद मोहम्मद अरसलान के वालिदैन की बेटी की शरपसंदी पर शदीद मजम्मत। वालिद ने कहा कि नौजवान कौम का असासा है, उनको सियासी रहनुमाओं के जहरीले बहकावे में नहीं आने चाहिए। ये वही लोग हैं जिन्होंने हमारे बेटे को शरंगेजी पर उकसाया, मनफी जहन साजी की। बाकी की मजम्मत करता हूँ, जो कुछ हुआ ये गलत हुआ। ये वही लोग हैं जिन्होंने पहले इन बच्चों का ब्रेन वॉश किया, इनको उकसाया और इनको जो है ना मेंटली तौर पे इनको प्रिपेयर किया। वो पहले से उनका कोई प्लान था जो जिस तरह उन्होंने किया। ये लोग जो है ना ये बाद में किसी के नहीं होते, खुद ही आराम से घर बैठे हुए हैं। अब मेरा एक पैगाम है कौम के नाम तमाम लोगों से है कि प्लीज 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 अपने बच्चों को इन सियासतदानों से महफूज करें। 9 मई के वाक़यात में जो कुछ हुआ बहुत बुरा हुआ है।
कि नौजवान नस्ल है उन्होंने बच्चों का ब्रेन वॉश इस कदर किया हुआ था कि बच्चों को उकसाया हुआ था। इंसान का जहन नहीं भी सोचे तो सोचने पे मजबूर हो जाता है। ट्रेनिंग से सब कुछ किया, सब कुछ उकसाया, सब कुछ कर करा लिया, कहता वो सब कुछ पीछे हटके होके बैठ गए कि ना वो बच्चों का वो साथ दे रहे हैं, ना उनको निकलवाने में कोई मदद करते हैं, ना कुछ कर रहे हैं। तो हम यही पैगाम दूसरे लोगों को भी देते हैं कि ऐसे सियासी जगहों से दूर रहना चाहिए। डायरेक्टर एडमिन की सरबराही में जुल्फिकार अली भुट्टो यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ कराची के वफ्द का जिन्ना हाउस का दौरा। वफ्द ने जिन्ना हाउस वाक़े की शदीद मजम्मत करते हुए कहा कि 9 मई का वाक़या इंतहाई रंजीदा कर देने वाला है। मुलव्विस अनासिर को निशानी इबरत बनाया जाए, उनके सहूलतकारों और मास्टरमाइंड्स को भी सख्त सजा दी जाए। कराची से यहाँ पे आए हैं, जो दिल खराश मनाजिर देखने में आए हैं और ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। मुलव्विस हैं और जो आइडेंटिफाइड हैं उनको करार वाकई सजा दी जानी चाहिए और ये कानून के मुताबिक है। ये इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा फिरदौस आशिकवान न्यूज कॉन्फ्रेंस करेंगी। रहलत तो ही है और उनके लिए भी हम सब जो है वो अफसरदा भी हैं और उनके लिए भी दुआए खैर जो है, क्योंकि अफजल भट्ट साहब के वालदा के साथ साथ जहांगीर तरीन साहब के भाई के लिए भी हमें दुआ करनी है और परवरदिगार उनको भी आसानियाँ पैदा करे और उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। जैसा कि आप जानते हैं कि IPP इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के प्लेटफार्म से पहली बाज़ाब्ता एज इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी ऑफ द पार्टी और स्पोक्स पर्सन के तौर पे ये मेरा पहला आपसे जो है वो मुलाक़ा है और हमारी मीटिंग है और ये प्रेस टॉक जो है बेसिकली इस्लामाबाद के अंदर ये हम पहली दफ़ा IPP के फोरम से ऑफिशियली जो है किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक दूसरे के आमने सामने मौजूद हैं। बहुत सारे सवालात, बहुत सारे आपकी मीडिया के अंदर नैरेटिव्स और डिस्कशन और डिबेट चल रही है IPP के हवाले से, तो ये ज़रूरी समझा गया कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जो है वो अपना मौक़िफ़ इस्लामाबाद, चूँकि हमारा दारुल खिलाफा है, अगरचे के लाहौर के अंदर मीडिया के साथ हमारी फ्रीक्वेंट इंटरेक्शन रही हैं, इनफॉर्मल भी रही हैं, फॉर्मल भी रही हैं, तो दारुल खिलाफा से एक वफाक की जमात जो है वो वफाकी सतह पे फर्स्ट टाइम जो है अपने ज़राए अबलाग से वो तमाम हक़ाइक़, वो उसके साथ जुड़ी रियलिटीज़ और उस जमात के जन्म लेने की वजूहात और फिर पाकिस्तान के मौजूदा हालात, पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल और उसके साथ जुड़ा जो हमारा मायूसियों के स्याह और घने बादलों के अंदर एक इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का अज़म, वलवला और उम्मीद और रोशनी की वो किरण जो पाकिस्तान के नौजवानों के मुस्तकबिल के लिए एक रोड मैप का तयन करने जा रही है। लिहाजा आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो इस लिहाज से ज़रूरी है और अहम है कि हमारा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो अल्हम्दुलिल्लाह अपने आखिरी मराहल में वो तमाम कंसल्टेशन, डिस्कशन और एनालिसिस और टीम वर्क और जो SOPs इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हैं उनको हम पूरा करके आइंदा हफ्ते बाज़ाब्ता तौर पे रजिस्ट्रेशन के लिए इलेक्शन कमीशन का दरवाज़ा खटकाने जा रहे हैं। जो आपको पता है कि इलेक्शन कमीशन का एक नई जमात को रजिस्टर करने के लिए एक तवील फहरिस्त 3000 से ज़ायद मेंबरान विद ID कार्ड्स और बेशुमार एक ज़ाब्ता अखलाक के साथ जुड़ा मैनिफेस्टो पे मबनी
ایک ضابطہ ہے جس کو فلفل کرنے کے بغیر آپ رجسٹرڈ نہیں ہو سکتے. الحمدللہ وہ مرحلہ جو ہے وہ ہم مکمل کر چکے ہیں اور آئی پی پی جو ہے وہ اپنا ایسا مینیفیسٹو اگلے ہفتے آپ کے سامنے لے کے آ رہی ہے جس کے چیدہ نکات آج ہم ڈسکس کریں گے اور ان ڈیٹیل ہم اس رجسٹریشن پروسیس کے ساتھ، چونکہ وہ مینیفیسٹو اٹیچ ہونا ہے تو وہ سبمٹ ہونے کے بعد ہم آپ کو پبلک کر دیں گے. چیدہ جو اس کے نکات ہیں اس کے اندر سب سے اہم چیلنج جو اس وقت ہمارے سامنے اور آپ کے سامنے اور پوری قوم کے سامنے ہے وہ پاکستان کے اندر معاشی اور سیاسی عدم استحکام ہے. اس معاشی عدم استحکام کو کس طرح سے ہم ایک پاکستان کے لیے ترقی اور خوشحالی کے سفر کا ایک ایسا سلوگن اور ایک ایسا روڈ میپ پلان کر سکتے ہیں، اس مینیفیسٹو کے جو پلرز ہیں، جو اس کا مختلف سٹرکچر کریٹ کیا گیا ہے، اس کے ساتھ یہ کوشش کی گئی کہ آپ کی 150 سے زائد جو سیاسی جماعتیں اس وقت الیکشن کمیشن کے ساتھ رجسٹرڈ ہیں، ہر ایک نے اپنے اس مینیفیسٹو کے ساتھ دل فریب نعرے لگائے ہوئے ہیں، منشور لگایا ہوا ہے. اپنے عوام کو اٹریکٹ کرنے کے لیے الیکشن ایجنڈے کے ساتھ جڑا وہ سہانے خواب جو ہیں وہ انہوں نے اس کے ساتھ جوڑے ہوئے ہیں. لیکن استحکام پاکستان پارٹی جو ہے اس سارے پروسیس سے ہٹ کے، یقیناً وہ ایس او پیز جو الیکشن کمیشن کے ہیں وہ تو ہم نے فالو کیے بغیر رجسٹر نہیں ہو سکتے، لیکن ان خانے خوابوں کو دکھانے کے ساتھ ساتھ ہم نے اس کی تعبیر کی ریسیپی بھی ساتھ لگائی ہے جو پاکستان کے مستقبل کی کنجی ہے. کیونکہ پاکستان کو اس وقت جو 65% ہماری یوتھ ہے، جو ہمارا قیمتی اثاثہ ہے، اس یوتھ کو ہم نے لائبلٹی نہیں بننے دینا اور یہی ہمارا محور اور مرکز ہے اس مینیفیسٹو کا کہ ہم نے اس یوتھ کو جو پاکستان کا مستقبل ہے، جو پاکستان کا ایک ایسا قیمتی اثاثہ ہے جو ان گائیڈڈ میزائل ہیں، جن کے اندر سابقہ ادوار میں جان بوجھ کے اس کو پلوٹ کیا گیا، ان کے ذہنوں کی منفی یا بیاری کی گئی، ان کے ذہنوں کو آلودہ کیا گیا اور ان کے اندر بارود تو بھر دیا گیا، لیکن وہ بارود جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ ایک پارٹنرشپ کی بجائے، پاکستان کے ساتھ اونرشپ کی بجائے، قومی ادارے اور قومی سلامتی کی جو بیسک ریسیپی تھی اس کے ساتھ ان کو جوڑنے کی بجائے وہ نفرت انگیز بارود جو ہے ان کے ذہنوں میں جو بھرا گیا. آئی پی پی جو ہے ان نوجوانوں کو پرو پاکستان، پرو ریاست، اپنی سوورینٹی، اپنی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی اور ایک محب وطن شہری کی حیثیت سے جو ان کے حقوق ہیں ان کے تحفظ کی بھی ضمانت دینے جا رہی ہے اور جو ان کے فرائض ہیں اس میں بھی ان کو ساتھ مین سٹریم پولیٹیکل پروسیس میں انگیج کرنے جا رہی ہے. اب آپ پوچھیں گے کہ وہ کیسے؟ پوری سیاسی جماعتوں کا آپ جب ایجنڈا اٹھاتے ہیں یا ان کا مینیفیسٹو اٹھاتے ہیں تو آپ کو وہاں ہیلتھ، ایجوکیشن اور اس کے ساتھ جڑے مختلف طرح کے ایسے دل فریب نعرے نتھی ہوئے ان مینیفیسٹوز کے ساتھ نظر آئیں گے. لیکن جو ریئلسٹک اسٹریٹجی ہے، جتنی مرضی آپ کی کمپریہنسو، لیوکریٹو، اٹریکٹیو پالیسی بن جائے، جب تک اس پالیسی کے ساتھ آپ کی امپلیمنٹیشن اسٹریٹجی نہیں ہوتی، اس پالیسی کا نچلی سطح پہ کوئی تاثر یا کوئی کسی قسم کا رزلٹ دیکھنے کو نہیں ملتا. اور یہی وجہ ہے کہ 76 سال سے پاکستان میں ہم نے ایک دوسرے کے گریبان
पकड़ने की सियासत की, हमने टकराव और तसादम की सियासत की। IPP ये चाहती है, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, कि हम मुत्तहिदा पाकिस्तान को आगे लेके चलें, और वो मुत्तहिदा पाकिस्तान जो हमारे नौजवान हैं उनको आपने टारगेट देना है, और वो बारूद से भरे हमारे मिसाइल जो हैं, कोई उसमें स्किड मिसाइल है, कोई हमारा गौरी मिसाइल है, कोई हमारा, वो किस तरह से अपने टारगेट पे चलेंगे। वो 3 पैरामीटर्स जो सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे, वो उन नौजवानों के लिए क्वालिटी एजुकेशन की बात तो हम करते हैं, लेकिन क्वालिटी एजुकेशन जो दौरे हाजिर के जदीद तकाज़ों के मुताबिक हो, और जो डिजिटल पाकिस्तान, इस वक्त दुनिया जो है वो डिजिटल मार्केट का रूप धार चुकी है, तो डिजिटल पाकिस्तान के साथ जुड़ा जो उस नौजवान का IT से रिलेटेड ओरिएंटेशन है, कैपेसिटी बिल्डिंग है, उसको वो तमाम एक्सपोजर देना, और अपने हमसाया ममालिक के साथ जब हम कंपेयर करते हैं और उनकी एक्सपोर्ट्स को देखते हैं, तो उसमें IT जो है वो टॉप पे हमें नज़र आती है कि इंटरनेशनली उनकी जो ह्यूमन रिसोर्स इन्वेस्टमेंट है, हम देखें इन्वेस्टमेंट करते हैं पुलों पे, अपनी सड़कों पे, अपने नालों पे, अपनी बड़ी बड़ी हाउसिंग सोसाइटीज़ पे, बड़े बड़े कंक्रीट स्ट्रक्चर पे। IPP ये चाहती है कि हमारा मुस्तकबिल जो है वो हमारा वो नौजवान है, और उस ह्यूमन रिसोर्स पे हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, और हमारी वो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो है वो क्वालिटी एजुकेशन के ज़रिए दुनिया में अपने आप को एम्पावर करेगी। चूँकि आपका इस वक्त चैलेंज जो है सबसे बड़ा है क्वालिटी एजुकेशन के साथ जुड़ा, फिर आपका हेल्थ एक अगला सब्जेक्ट है, और हेल्थ जो है पाकिस्तान के अंदर आपको पता है कि मुख्तलिफ तरह के तरीके और रास्ते अपनाए गए, लेकिन आज भी बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ जो हैं पाकिस्तान में नायाब हैं। गरीब और अमीर के लिए जो हेल्थ केयर स्ट्रक्चर के अंदर बसूदा निज़ाम के अंदर गैप्स हैं, अमीर के लिए हॉस्पिटल, गरीब के लिए और तरह की डिस्पेंसरीज, इस सोच की नफ़ी करते हुए इंशाल्लाह हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर भी हम वो पैरिटी लाने जाएंगे कि जो पाकिस्तान के अवाम का हक है, और जो ख़ास तौर पे 70% रूरल एरिया के अंदर हमारी माएँ, बहनें, बेटियाँ आज भी इन्फेंट मॉर्टेलिटी और मदर्स मॉर्टेलिटी रेट की वजह से, हाई होने की वजह से मर रही हैं, और वो चैलेंजेस जो देहात के अंदर रहने वाले हमारे भाई, बुजुर्ग, माएँ और बहनें फेस कर रही हैं, उनको इंशाल्लाह हमारा मैनिफेस्टो तहफ़्फ़ुज़ देगा, और ऐसा रोड मैप हेल्थ केयर सेक्टर में लेके आ रहे हैं हम कि इंशाल्लाह जिसमें आप देखेंगे कि वो हम दावे नहीं करेंगे, हमारा अमल बताएगा कि हम पाकिस्तान को प्रैक्टिकली बदलने के लिए क्या इक़दाम करते हैं। हमारी जमात जो है वो किस तरह हेल्थ केयर सेक्टर के साथ वो तमाम इंटरनेशनल क्वालिटी हेल्थ प्रैक्टिसेस, प्रोसीजर और मैकेनिज़्म जो है वो पाकिस्तान में मुतारफ़ करवाएंगे। तीसरा आपकी उस यूथ के साथ जुड़ा चैलेंज क्या है, आपका एम्प्लॉयमेंट है। अब आप जब मैं यूथ कहती हूँ तो इट मीन्स के मेल एंड फीमेल यूथ, उस फीमेल यूथ में 52% आपका जो है वो वुमन यूथ है या फीमेल यूथ जो है अनयूटिलाइज्ड एसेट है। और ये मैं हमेशा कहती रही हूँ कि आज दुनिया में जो जंगें हैं वो सरहदों पे अब नहीं हो रही हैं। अब दुनिया में जो जंगें हैं वो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की जंग है। आज इकोनॉमिक हब के ऊपर हर मुल्क जो है अपनी जंग लड़ रहा है, और वो कौम कैसे इकोनॉमिक फ्रंट पे तरक्की करेगी जो अपनी आधी से ज़्यादा फौज जो है उसको अनयूटिलाइज्ड फौज को उस महाज पे इकोनॉमिक फ्रंट पे एंगेज ही नहीं कर रही। तो लिहाजा वो ख़वातीन जो घरों में बैठी हैं, वो पढ़ी लिखी हैं या वो उस तरह से क्वालिटी एजुकेशन की अपॉर्चुनिटीज़ या मौके उसको नहीं मिले, लेकिन उनके अंदर पोटेंशियल है, कैपेबिलिटी है, तो IPP उन ख़वातीन को हुनरमंद बना के पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम जो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट है उसके अंदर
حصے دار بنا کے پاکستان کے اندر ایٹل آرگن کے طور پہ ان کو انگیج کرنے جا رہی ہے. کیونکہ اس وقت آپ کا جسم کے دو بازو اگر ایک فالج زدہ ہو اور ایک ہاتھ سے آپ کام کر رہے ہوں تو آپ وہ ایفرٹس، آپ کی وہ انرجیز جو ہیں وہ اس طرح سے ریزلٹس پروڈیوس نہیں کر سکتی. اسی طرح بحیثیت قوم ہمارا اس وقت چیلنج ہے کہ ہمارا ایک بازو کام کر رہا ہے، جو میرے بھائی ہیں، جو میرے بزرگ ہیں، میرے بچے ہیں، لیکن دوسرا ہاتھ جو ہماری بہنیں، بیٹیاں اور مائیں ہیں وہ ان یوٹیلائزڈ ہے. اس کو ہم نے فالج زدہ قرار دے کے اپنے ساتھ پارٹنرشپ میں لائے ہی نہیں. جب یہ دونوں ہاتھ ملیں گے، ایک باہمی پارٹنرشپ ہوگی، اکنامک فرنٹ پہ ہو، وہ سوشل پہ ہو، وہ آپ کے پولیٹیکل پہ ہو، وہ آپ کی اوورآل سول سوسائٹی کے اندر ہو، تو چینج تب آنی ہے. صرف کہہ دینے سے کہ ہم نئے پاکستان یا کوئی تبدیلی کے نعرے لگانے سے وہ عملی تبدیلی نہیں آئے گی جب تک وہ فالج زدہ ہاتھ جو ہیں ان کو آپ ایکٹیویٹ کر کے اپنے ساتھ اس ترقی کے عمل میں حصے دار نہیں بنائیں گے. آئی پی پی جو ہے ان خواتین کو فرسٹ ٹائم ان دی ہسٹری آف پاکستان جو ہے وہ سوشلی، لیگلی، پولیٹیکلی اور اکنامکلی امپاور کرنے جا رہی ہے. اور اس کے اندر ہمارا وہ 52% اگر موبلائزیشن پاکستان میں ہو گئی، وہ کیسے کہ ہماری سوشو کلچر ریلیجیس ویلیوز ان بچیوں کو اگر کسی جگہ جاب ریسٹرکشن کی وجہ سے نہیں جانے دیتے، سیکیورٹی چیلنجز ہیں یا ہمارے معاشرتی رویے ایسے ہیں، تو آئی ٹی ایک ایسا سلوشن ہے کہ جو ہنرمند بیٹی جو ہے یا بہن جو ہے وہ گھر میں بیٹھ کے اپنے پاکستان کی تعمیر و ترقی میں حصہ ڈال سکتی ہے، اپنے خاندان کو جو ہے وہ بوجھ جو ہے وہ اس کا شیئر کر سکتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جتنی بھی ریفارمز ہیں، آپ نے دیکھا یہاں ریفارمز کے نعرے لگے، آپ نے دیکھا یہاں پہ ریفارمز کے نام پہ نوجوانوں کو بیوقوف بنایا گیا، اور یہاں پہ سابقہ ادوار میں ان نوجوانوں کے ذہنوں کے اندر پرانے پاکستان اور نئے پاکستان کے اندر الجھا کے اپنی دکانداری لگا کے جس طرح کا مال مویشی منڈی بنا کے اس معاشرے کو تقسیم کیا گیا، تو وہ جو تقسیم زدہ پاکستان ہے اس کی قیمت پوری قوم ادا کر رہی ہے. آج ہم پولرائز سوسائٹی میں بدل چکے ہیں. آج جو ہے ہم اس وقت جو ہے وہ کوئی لسانی سطح پہ، کوئی مذہبی سطح پہ، کوئی سیاسی سطح پہ جو ہے وہ آپس میں گروپ بندیاں بنا کے پاکستان کو کمزور کرنے، دانستہ کمزور کرنے کے عمل سے گزر رہا ہے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم بحیثیت پاکستانی دنیا کے باہر جب جاتے ہیں، دنیا میں پاکستان سے باہر، تو ہمارے ہمسایہ ممالک میں جب کوئی پاکستانی باہر کسی جگہ تعارف کراتا ہے تو وہ پراؤڈلی کہتا ہے کہ میں فلاں ہوں، میں اس کا نام نہیں لوں گی. لیکن ہم فخر سے کہتے ہیں، کبھی کوئی اپنے آپ کو پی ٹی آئی کہتا ہے، کبھی نون لیگ کہتا ہے، کبھی پیپلز پارٹی بن جاتا ہے، یا کوئی بھی سیاسی جماعت جو ہے اس کا لیبل لگا کے، ٹھپا لگا کے دنیا میں بھی وہ پاکستان کی شناخت اور امیج بلڈنگ کی بجائے وہ ان سیاسی جماعتوں کے ہتھ کنڈے اور ان کی جو مذموم مقاصد اور عزائم ہیں ان کے ہاتھوں میں کھلونا بن جاتا ہے. تو استحکام پاکستان پارٹی جو ہے پاکستان کا جو تشخص ہے، پاکستان کا جو وقار ہے، پاکستان کا جو اصل حقیقی چہرہ ہے وہ دنیا کو دکھانے جا رہی ہے. اور استحکام پاکستان پارٹی جو ہے وہ پورے پاکستان سے باہر بیٹھے، اندر اور باہر بیٹھے پاکستانیوں کو یکجا کر کے یونائٹڈ پاکستان کے ساتھ جوڑ کے ان کی طاقت سے پاکستان کو طاقتور بنانا چاہتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ چونکہ آپ نے کل دیکھا کہ جو ریفارمز کی بات ہم ڈسکشن میں تو لاتے رہے، لیکن وہ ریفارمز جو تھیں وہ آپ کی اس وقت لیگل ریفارمز سب سے بڑا چیلنج پاکستان کا، کہ جب ہر ادارہ اپنے دائرہ کار میں کام کرے گا تو پاکستان مضبوط ہوگا. اب ہر ادارے کے اندر جو سب سے زیادہ میرا ستایا، آپ کا ستایا، نظام کا ستایا، جس ادارے پہ جا کے دستک دیتا ہے وہ عدالتیں، جب وہاں پہ
انصاف کے ترازو جو ہے اور ان کے جو پلڑے ہیں وہ من پسند جھکاؤ کی طرف چلے جائیں گے اور قانون کی کتاب جو ہے وہ کھلونا بن جائے گی اور وہاں بیٹھے لوگ جو ہیں وہ ایسا کھلواڑ کریں گے کہ وہاں پہ وہ کورٹس جو ہیں وہ لیبلائز ہو جائیں، پولیٹیسائز ہو جائیں، وہاں پہ بیٹھے ہمارے معزز جج حضرات۔ قومی ٹیم کی سری لنکا روانگی سے قبل چیئرمین مینجمنٹ کمیٹی کا بابر اعظم کو ٹیلی فون۔ چیئرمین مینجمنٹ کمیٹی زکا اشرف کا قومی کرکٹ ٹیم کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ توقع ٹیم دورہ سری لنکا اور ایشیا کپ میں کامیابیاں سمیٹنے کی یہ کہنا تھا زکا اشرف کا۔ زکا اشرف نے ایشیا کپ سے متعلق بھی کپتان بابر اعظم سے گفتگو کی۔ بابر اعظم کی زکا اشرف کو چیئرمین مینجمنٹ کمیٹی کا عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد۔ کہا آپ کے پچھلے دور میں بھی پاکستان نے ایشیا کپ جیتا تھا۔ کپتان بابر اعظم نے کہا اس بار بھی ایشیا کپ جیت کر پاکستان لائیں گے۔ بابر اعظم نے کہا ٹیم کو مزید اوپر لے جانے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے۔ اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے ARN نیوز۔